Hello everyone. Now we know what are real numbers. Real numbers are the collections of the rational numbers as well as the irrational numbers. Okay, and what is this? This is a number line. So we can represent each real number in this number line. Now when we are looking at this number line, so this is the 0 and here we are having the positive values 1, 2, 3, 4, 5 and here minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 and so on. It means we are representing these all are the integers. Okay, and all integers are rational number. So we can represent 2. अगर 2 represent करना है तो कहाँ आएगा इसमें? This is the 2. So this is how we can represent 2 in this number line. But if we have to represent 3 by 2, what is 3 by 2? 3 by 2 is a rational number. So this 3 by 2 in decimal, what is it? 1.5. So where it will fall? 1, 2 in between these two. So what is this value? This value is 1.5. So we can represent this 1.5 on the number line. Similarly, minus 1.5 on the number line. So you all know how to represent rational numbers in this in the number line. And if we are looking between these two 1 and 2, अगर हम नंबर लाइन में 1 और 2 के बीच में देखेंगे सो हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर? आपके स्केल में देखो हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर बिटवीन 3 and 4 और 2 and 3 कितने डिविजन्स होते हैं? 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं, है ना? सो तो दिस इज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सॉरी 1, 2 तो ये क्या हो जाता है 1.5 तो 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 and 2.0. So in between two natural numbers we are having number of real numbers. So we can represent the rational numbers on the number line as well as we can represent the irrational number. हम किसको भी represent कर सकते हैं? Irrational numbers. Now in this class we will learn how to represent irrational numbers on the number line. First we will learn how to make root 2 on the number line. Now whenever we have to represent any number on the number line, the first step is to make the number line. तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? नंबर लाइन. अब अगर नंबर लाइन को हम ये स्केल के इन यूनिट्स के हिसाब से लेंगे तो इट विल बी नॉट ईजी टू ड्रॉ, है ना? बहुत छोटा स्केल है. तो हम क्या करेंगे? वी विल चेंज द स्केल and we will take 1 inch as the 1 unit or 2 centimeter as the 1 unit. It is up to you how you want to change the scale. ठीक है, to represent root 2 clearly on the number line. तो मैं अपनी नंबर लाइन कैसे बना रही हूँ? I am taking 5 units 5 centimeter as 1 unit. 5 centimeter को 1 unit ले रही हूँ. So now in this scale this is 5 centimeter, then this is 5 centimeter and then 15. So this is representing your number line. So here we are having 0, 1 and 2. So this is our number line. Now to represent root 2 on the number line we will take 1 unit. हम 0 से 1 को लेंगे. So this is representing our 1 unit. ये किसको represent कर रहा है? 1 unit को represent कर रहा है. And we will mark 0 as A and this 1 as B. ठीक है? So AB is equal to क्या हो गया? So what we have drawn? We have taken AB is equal to 1 unit. Now at B we will draw an angle of 90 degree. To make an angle of 90 degree we will take B as the center and
with any radius, B as center, and with any radius we will draw an arc. With B as center, and any radius we will draw an arc. ये arc बन गया. Intersecting number line at two distant points. Now let these points be X and this point be Y. Now with X as center and radius more than XY, क्या ले रहे हैं हम? X को सेंटर लिया और रेडियस इज मोर देन XY. Okay, we will draw an arc. With X as center we will draw an arc. क्या बना? Arc बना. Now with Y as center and with the same radius we will draw another arc. क्या किया अपन ने? X पे रखा और रेडियस मोर देन XY. We have drawn one arc. फिर Y पे रखा and with the same radius we have drawn another arc, and the point of intersection we call it M. Now join this BM. So this angle is equal to, ये कितने का एंगल बन गया? 90 डिग्री का. Okay? Now at this is your, and we mark this ray as BZ. क्या मार्क किया हमने इसको? BZ. Now we will take radius of 1 unit in this compass. तो AB कितना था हमारे पास? 1 यूनिट. हमने इसको मेज़र किया. So this is how much? This is 1 unit. Now taking B as center and radius equal to 1 unit, we will draw an arc on the ray BZ. हम क्या करेंगे? इस BZ पे एक आर्क कट करेंगे with the radius 1 unit. So this is intersecting the number line at the point. किस point पे कर रहा है ये? At the point C. तो join AC. क्या किया हमने? AC को ज्वाइन कर दिया. Now this AB is equal to 1 unit. What about BC? BC is again 1 unit. Clear? AB कितना है? 1 unit. BC कितना है? 1 unit. और एंगल B कितना है? 90 डिग्री. So what this implies कि triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. Hence it is a right angled triangle. And by Pythagoras theorem, what we will get? AC square equal to AB square. AC square equal to AB square plus BC square. Now how much is AB? AB is 1. So 1 का square. BC is 1 square. So how much we are getting? 1 square plus 1 square is 1. 1 plus 1, it gives us 2. So what is AC square? AC square equal to 2. This implies AC equal to root 2. तो आपको क्या मिल गया? ये AC कितना है? So this AC in this triangle, this is our 1 unit. ये भी कितना था? 1 unit. तो आपको AC कितना मिल रहा है? बाय द किससे? बाय Pythagoras theorem. This AC square equal to root 2. And to represent root 2 on the number line, अब इसको number line पे करना है.
तो हम क्या करेंगे, वी विल मेज़र दिस AC, आप इस AC को मेज़र करो, ठीक है। एंड विद दिस सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑन द नंबर लाइन, आपको क्या करना है, एक आर्क कट करना है। तो जब हम ये आर्क कट करेंगे, आपको यूँ नहीं पकड़ना है पेंसिल को, बट आई हैव टू मेक इट डार्क, है ना, सो आई एम यूजिंग, ये तो दिखेगा ही नहीं आपको। सो इट विल कट योर नंबर लाइन, कहाँ पे कट कर रहा है नंबर लाइन को, इस पॉइंट पे कर रहा है ना, तो इस पॉइंट पे ये नंबर लाइन को कट कर रहा है। तो दिस A टू दिस पॉइंट, नाउ A टू दिस, ये AC कितना है, √2, और इसी रेडियस से बनाया। तो यहाँ पे जो आपको मिल रहा है A, सपोज हम इसको N ले रहे हैं, सो दिस AN, ये AN कितना होगा, this will also be √2. So how much it is? √2. So this is how we construct √2 on the number line. Now to represent √3 on the number line, we have taken the number line, ठीक है। number line में अपन ने क्या लिया, this 2 inch as the 1 unit. नाउ टेक दिस O0 to 1, इसको हमने क्या लिया, 1 यूनिट, है ना। तो दिस इज लिया क्या, दिस इज एक्चुअली 1 यूनिट, सो वी विल मार्क एज A B लेने के बाद व्हाट वी विल डू, वी विल टेक आवर कंपास एंड विथ B एज सेंटर एंड एनी रेडियस वी विल ड्रॉ एन आर्क। अभी मैं क्या बना रही हूँ, √2 बना रही हूँ, जो पिछली बार बना चुकी हूँ, ठीक है। सो जस्ट यू हैव टू सी द स्टेप्स। तो मैंने क्या लिया, B को सेंटर लिया एंड विथ एनी रेडियस आई हैड ड्रॉन दिस आर्क। हम क्या बनाएंगे, आर्क बनाएंगे, विच विल इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट 2 पॉइंट्स। नाउ विथ दिस एज सेंटर, जहाँ पे आर्क ने कट किया उसको सेंटर लेंगे एंड विथ एनी रेडियस, जितना भी आपको रेडियस लेना है यू कैन टेक, एंड विथ एनी रेडियस वी विल ड्रॉ एन आर्क। ये अपन ने क्या बनाया, आर्क कट किया, ठीक है। एंड टू गेट अ पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ वन मोर आर्क, सो वी विल ड्रॉ द आर्क। हमने क्या लिया, B पे रखा और आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। एंड दिस आर्क इज इंटरसेक्टिंग दिस नंबर लाइन एट दीज 2 पॉइंट्स, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा था और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा था, ठीक है। नाउ विथ दिस पॉइंट एज सेंटर एंड एनी रेडियस वी विल ड्रॉ एन आर्क ऑन द नंबर लाइन, सॉरी on one side of the number line, clear है। Now with the other point also and with the same radius we will draw another arc intersecting the previous arc at a point। तो जिस point पे वो कट करेगा you will join this B to that point। ये दोनों आर्क कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कट किए, so you will join this। तो जब हम join करेंगे, join and extend, so what we will get a ray starting from B, है ना। we will B से पूरा वो perpendicular बनेगा। now with B as center and radius equal to 1 unit, ये आपका AB कितना था, 1 यूनिट था। now with B as center and radius equal to 1 unit draw an arc on the ray। सो इस रे को ये कहाँ पे आर्क कट करेगा, एट द पॉइंट C। ये पॉइंट C दिख रहा है आपको। सो B पे रखा और 1 यूनिट लेके हमने आर्क कट किया C पे। तो व्हाट इज BC, BC इज इक्वल टू, ये कितना हुआ, ये हमारे पास कितना है, दिस इज 1 यूनिट। व्हाट इज AB, AB इज ऑल्सो 1 यूनिट, ठीक है। तो ये हमको 1 मिल गया, ज्वाइन AC। सो व्हाट वी विल गेट अ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ABC। सो व्हाट वी आर हैविंग अ ट्राइंगल ABC। नाउ दिस ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल। So this triangle ABC is a right triangle
तो इस राइट ट्राइंगल में बी पे 90 डिग्री है, सो व्हाट इज हाइपोटेनस, दिस ए सी इज द हाइपोटेनस. सो व्हाट वी विल गेट दैट ए सी स्क्वायर, what we will get that AC square is equal to AB square plus BC square. किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC. So what we will get, 1 square plus 1 square, so what is AC square, AC square equal to 2, so AC equal to √2. तो ये हमको √2 मिल गया. ठीक है, अब √2 मिलने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस ऑन द नंबर लाइन. तो हमने क्या बनाया था, विथ A as center and C as AC as radius, we have drawn an arc on the number line. ये आर्क बनाई, ये आर्क बनी, एंड दिस आर्क इज इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट अ पॉइंट. किस पॉइंट पे कट कर रहा है, एट अ पॉइंट डी. किस पॉइंट पे कर रहा है, डी पे. सो दिस ए डी, ये जो आपको ए डी मिल रहा है, व्हाट इज इट, दिस इज √2. क्लियर, ये कितना है, √2 है. तो व्हाट इज ए डी, ए डी इज √2. नाउ टू रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन वी विल यूज द स्पाइरल मेथड. यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ध्यान से देखना. व्हाट वी विल डू, वी विल एक्सटेंड दिस ए सी. आप इस ए सी को एक्सटेंड करिए, and at C we have to draw an angle of 90 डिग्री. कहाँ पे बनाना है हमको, C पे. तो C पे रखा, C से किस लाइन के लिए, AC लाइन के लिए, है ना. हमको इस AC लाइन के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम कहाँ पे रखेंगे इसको, C पे. एंड वी विल ड्रॉ एन, विथ एनी रेडियस वी विल ड्रॉ एन आर्क. ये आर्क मिल गया हमको, जो इस AC एक्सटेंडेड AC को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. नाउ विथ दीज 2 पॉइंट्स वी विल ड्रॉ आर्क्स. ये एक आर्क कट किया और इस पॉइंट से हमने सेकेंड आर्क कट किया. अब ये जो पॉइंट मिला, वी हैव टू जॉइन दिस पॉइंट टू C. तो जब इस पॉइंट को हम C से ज्वाइन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट C. क्लियर है, आप सब भूल जाओ, आपने सिर्फ क्या किया है, इस AC के पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. तो AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के लिए हमने C पॉइंट लिया, C से एक आर्क कट किया. ये दोनों पॉइंट जहाँ कट कर रहे थे इस पॉइंट पे रख के, एंड रेडियस मोर देन दिस, ये इस पूरे से ज़्यादा लेके हमने आर्क कट किया. ठीक है, जॉइन C टू दिस पॉइंट एंड वी आर गेटिंग अ परपेंडिकुलर. सो नाउ व्हाट इज दिस AC, AC कितना था, √2. अब हम C से एक आर्क कट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 1 यूनिट. तो अपने पास ये AB कितना था, 1 यूनिट. नाउ टेकिंग C as center and radius equal to 1 unit, we will draw an arc on this perpendicular. तो जब हम इस perpendicular पे ये आर्क कट करेंगे, so it will intersect the perpendicular at a point and we will call this point as P. क्या बोल रहे हैं हम इसको, P. नाउ जॉइन AP. तो जब हम AP को जॉइन करेंगे, सो व्हाट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग अ ट्राइंगल ACP. देखो क्या मिल रहा है हमको,
ACP ट्राइंगल मिल रहा है. नाउ दिस ACP ट्राइंगल इज अगेन अ राइट ट्राइंगल. ये ACP आपके पास फिर क्या मिला? अ राइट ट्राइंगल. नाउ इन दिस राइट ट्राइंगल, कौन से राइट ट्राइंगल में? दिस ऑरेंज ट्राइंगल APC. इन ट्राइंगल APC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल C कितने का है? 90 डिग्री का है. ठीक है. सो what is AP square? AP is the hypotenuse. So what is AP square? AP square will be AC square plus PC square. अब AC कितना है? √2 का स्क्वायर. And what is PC? This is 1 square. So this is 2 plus 1 equal to 3. So now what is AP? It is under √3. हमको AP कितना मिल रहा है? Under √3. So what is this AP? This is √3. कैसे मिला ये √3? 2 square plus 1 square. 2 square plus this is 2 unit. This is √2 unit. This is 1 unit. So 2 square plus 1 square. √2 square plus 1 square is 3. So this AP square is equal to AP is √3. Now to represent it √3 on the number line, we will measure this AP with the help of the compass. ये अपन ने मेज़र किया AP. अब इसको आर्क कट करो. सो दिस आर्क विल कट द नंबर लाइन. ये आर्क क्या करेगा? आपकी नंबर लाइन को कहीं कट करेगा. तो जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, सो A टू दिस पॉइंट, A से लेके ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं क्या बोल रही हूँ? दिस इज E. ठीक है. दिस AE is √3. ये AE कितना हुआ? √3. अब हमको √4 चाहिए. तो व्हाट इज √4? √4 इज अगेन 2. √4 क्या होता है? 2. अभी यहाँ पे अपने पास √3 है, तो यहाँ पे फिर क्या बनाएंगे हम? AP को एक्सटेंड करके AP पे क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर, है ना. तो अब अपन क्या करें? इसको एक्सटेंड करें. AP को, किसको एक्सटेंड किया मैंने? AP को. और P पे रख के हम क्या ड्रॉ करेंगे? फिर वही प्रोसेस. P पे हमने रखा और आर्क कट किया जो उस लाइन को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है. फिर यहाँ पे रखा, उन दोनों पॉइंट्स पे रख के हम आर्क कट करेंगे. ये कट हुआ. क्लियर. अगेन वी विल गेट अ परपेंडिकुलर. तो आपको क्या मिला? दिस परपेंडिकुलर. क्लियर है. अब आपके पास ये √3 और ये आपको परपेंडिकुलर मिल रहा है. तो इस परपेंडिकुलर पे आप कितना कट करोगे? 1 यूनिट. ये कटा 1 यूनिट. कहाँ से कहाँ तक? दिस P टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? वी विल कॉल दिस एज Q. दिस PQ. So this is point P. This is line PQ. अब हम इसको Q to A join करें. Now again we are having a triangle. फिर हमारे को एक ट्राइंगल मिला. अब ये भी क्या है? राइट ट्राइंगल है. नाउ दिस ग्रीन ट्राइंगल. अब इस ग्रीन ट्राइंगल में देखो, व्हाट इज हाइपोटेनस? व्हाट इज हाइपोटेनस?
this AQ is the hypotenuse, so AQ square equal to AP square plus PQ square. तो √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना था 1. सो √3 स्क्वायर, व्हाट इज √3 स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर, व्हाट इज 1 स्क्वायर 1. तो 3 प्लस 1 कितना हुआ √4, 3 प्लस 1 4. सो व्हाट इज AQ, AQ विल बी √4 और √4 किसके बराबर होता है 2 के. तो फिर अगर आप AQ को लेके आग कट करोगे तो वो यहाँ पे आके कट करेगा एंड यू विल गेट दिस. इसको आप F ले लो तो आपको क्या मिलेगा, AF इज इक्वल टू √4 विच इज इक्वल टू 2. सो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज सेड टू बी द स्पाइरल. अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड करते जाओ तो यू विल गेट √2, √3, √4, √5 everything on you will be able to draw on the number line. But it is not all easy. Suppose in exam it needs practice, है ना, थोड़ी practice करोगे तो बन जाएगा. Now if we have to draw √5 on the number line, so it is not always possible. अब √5 बनाना है तो पहले मैं क्या बनाऊँ, √2 बनाऊँ, फिर √3 बनाऊँ, ये बना √2, फिर ये बना √3, फिर बना √4, फिर बनाऊँ √5. So it will take much of our time, है ना. So reduce our job, we are having one more method. Without spiral also we can draw the irrational numbers on the number line. So we are drawing √5 on the number line. To draw √5 on the number line, first of all what we have to do, we have to make the number line. Now here what we will do, we will try to write जिस भी नंबर का हमको बनाना है, जैसे √5 को बनाना है. सो व्हाट इज दिस, दिस इज 5, है ना. इस 5 को हम क्या लिखेंगे, एज ए स्क्वायर ऑफ वन नंबर प्लस 1. तो दिस 5 कैन बी रिटन एज 4 प्लस 1, स्क्वायर नंबर प्लस 1. सो व्हाट इज 4, 2 स्क्वायर प्लस 1. So what we can write 5 as 2 square plus 1. We will find the smallest natural number whose square, है ना, plus 1 will give you 5. तो कितना आ रहा है. So what we can write, √5 is equal to √2 square plus 1 square. तो हम अपना जो अब ट्राइंगल लेंगे उसमें क्या लेंगे, 2 + 1 ले आएंगे. अब देखो कैसे, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, व्हाट वी आर हैविंग √5. सो √5 को हमने क्या लिखा, √5 को हमने लिखा 4 + 1. किसका रूट, व्हाट वी कैन राइट 5 as 4 + 1. व्हाट वी आर राइटिंग 5 is equal to 4 + 1. And what is 4? 4 is actually square of 2. And what is 1? This is a square of 1. So thus 5 can be written as 2 square plus 1 square. And if we are putting root, तो कितना आ जाएगा, √5 is equal to √2 square plus 1 square. And we will use this. अब अगर हमको √17 लिखना होता तो √17 को हम क्या लिखते, √16 plus 1. तो what is 16? We will try to write as the square of number plus 1. तो 4 square plus 1 square. So it will be directly we will be able to draw the number. I am taking 1 unit is equal to 3 inch. So 3, 6, 9. Okay. So now this is 0, 1, 2, 3. So this is our number line. Now what we have to represent, we have to represent √5 on the number line. So what we will take, we will take this
दिस पॉइंट इज अवर 0. तो दिस 0 to 2 एज ए बी. हमने क्या लिया 0 to 2 को. सो 0 to 2. दिस 0 to 2 इज अवर ए बी. इसको हमने लिया A and what is this? This is B. This AB is equal to 2 units. Now at B we will draw perpendicular. तो हमने B पे लिया and with any radius we will draw an arc intersecting this number line at 2 points. इसको कहाँ पे कट कर रहा है? नंबर लाइन को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है. Now taking these 2 points as the center we will draw arcs. तो हमने इस पॉइंट पे रखा and radius more than this. इससे इसके रेडियस से क्या किया मैंने? इसको ज़्यादा किया. देखो ये मेरा इसका रेडियस इससे ज़्यादा है. यहाँ पे रख के मैंने आर्क कट किया. ड्रॉ arcs. Now mark this point as M. Join BM and extend. So what is this BM? ये BM क्या हुआ? This BM is a perpendicular. Now at B we will draw with B as center and radius equal to 1 unit. 1 unit कितनी है? इतनी. तो we will measure this 1 unit. Now we will mark this point as C. हम इस पॉइंट को क्या मार्क करेंगे? C. मैंने इतना बड़ा स्केल क्यों लिया है? क्योंकि ये आपको इजीली विजिबल हो. ठीक है. आप नॉर्मली क्या लेना? 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना या 1 इंच को 1 यूनिट लेना. सो इट विल बी बेटर. Now we have to join this AC. हम क्या करेंगे? इस AC को ज्वाइन करेंगे. ये AC है. Now join this AC. Now what we are getting? We are getting a triangle. क्या मिल रहा है हमको? ट्राइंगल ABC. ये पॉइंट क्या था? C. ठीक है. What is this point? This point is actually C. मैंने इसको C मार्क किया था. कौन सा पॉइंट है? BC is equal to हमने क्या लिया था? 1 unit. Now this BC is equal to 1 unit. And what about this AB? AB we have taken as 2 unit. So we are getting a triangle. जो ये triangle मिल रहा है, so this triangle is a right triangle. ये आपको क्या मिला? Right triangle मिला. So now in this right triangle, this angle is equal to 90 degree. ये एंगल कितने का था? 90 डिग्री का था. तो in this triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. So what we have got? AC square equal to AB square plus BC square. Now what is AB? AB कितना है? 2. So 2 square plus 1 square. So this will be 4 plus 1 5. तो AC कितना हो गया? 5 यूनिट. क्लियर? ये हमको AC कितना मिल गया? 5 यूनिट मिल गया. अब दिस AC इज वी आर रिप्रेजेंटिंग हेयर. और हमको कहाँ पे इसको शो करना है? नंबर लाइन पे. ये हमारी नंबर लाइन है. We have to show this on the number line. So what we will do? We will take this A as the center and radius equal to कितना लेना पड़ेगा हमको? AM. What we have to take? We have to take the radius as AM. अब जब हम बहुत बड़ा स्केल कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है कि राउंडर अभी खिंच ही नहीं रहा है ना. इसलिए आपको बोला आप स्केल क्या लेना? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1 इंच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट और 1 इंच इक्वल टू 1 यूनिट, जिससे मैंने आपको पहले सिखाया था. ठीक है. अब हम A पे रख के क्या कर रहे हैं? A पे रख के और हमने क्या लिया? दिस एज, सो दिस इज आवर, ये रेडियस हुआ
अब इस रेडियस को लेके हम आर्क कट करेंगे. सो व्हेन वी विल कट द आर्क, इस रेडियस को लेके हम आर्क कट करेंगे. तो दिस विल कट योर नंबर लाइन. जब आप इसको कट करोगे, सो दिस विल कट योर नंबर लाइन at a point. So when we take, what we have to take, we have to take this A as the center and AC as the radius. We have to draw an arc which will intersect, ये हमने arc cut किया, ठीक है, which will intersect your number line at a point. At a point, suppose we name it as X. इसको क्या नेम किया अपन ने? x किया. एट अ पॉइंट x. सो व्हाट इज दिस ax? क्योंकि ये AC और ये एक ही रेडियस है ना, रेडियस एक ही है, तो ये कितना है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली कितना था? √5 था. तो जब ये √5 है, जब ये AC² इज इक्वल टू 5 है ना, तो AC कितना हो जाएगा? What is AC? AC will be √5 unit. तो ये AC कितना है अपने पास? √5. तो this AX is also √5. तो what we have got? This AX, this is √5. So this is the representation of √5 on the number line. बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, बना के छोड़ देते हैं ना. जब तक आप नंबर लाइन पे नहीं दिखाओगे तब तक कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको वी हैव टू शो द नंबर ऑन द नंबर लाइन. सो ये प्रॉब्लम नहीं आए कि आप रेडियस ना ले पाए, इसलिए आपको अपनी स्केल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है ना. क्लियर? सो हाउ मच यू हैव टू टेक एंड हाउ टू ड्रॉ, इज इट क्लियर टू यू?